Good morning, student of class 5. How are you? I hope you all are fit and healthy. So, welcome back to your EVS class, student. Today date is 12th August 2021 and I am teaching you chapter number 5. Name of the chapter is Force, Work and Energy. Let's do the little recapitulation what we have done in the previous video. So student, in the previous video I explained you what is a force, the action which is performed by the body, that is pull or push, that is a force, and what things we can do with the help of the force. So with the help of force we can move an object, we can stop a moving object, we can increase the speed of a object, we can change the direction of a object, and even by applying the force we can change the shape of an object. After that student, I discuss with you different types of a forces, that is muscular force. So in our day to day life we do lot of activities with the use of our muscular force. Even when you are writing, then also you are applying your muscular force. So we do lot of activities in our day to day life by applying the force, that is the muscular force, and even we are using the muscular force of the animals also. So for example an elephant use muscular force to carry logs of a wood, and in the old time bullock cart. So how it moves? So bull applies muscular force to pull the cart. Okay. Now next thing which we discussed, that is the gravitational force. So there is a force which attracts us towards the ground. Okay. For example, if you jump, then your feet land on the ground. Why this happen? This happen due to the force of gravity which is present on our planet Earth. Otherwise life is not possible. Water, all living and non-living things will float in the air. अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होती तो आपका वाटर है, स्टोन्स है, रॉक्स है, ह्यूमन बींग्स हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, सारे उड़ते रहते हैं हवा में. तो लाइफ इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि हमारे प्लेनेट पे जो फोर्स है जो हमें ग्राउंड की ओर खींच के रखती है, दैट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी. इसी को हमने क्या बोला? ग्रेविटेशनल फोर्स. उसके बाद हमने मैग्नेटिक फोर्स डिस्कस की थी. बेटा आज मैं सारी चीज़ें बिल्कुल शॉर्टकट में बोल रहा हूँ, अगर आपको डिटेल में देखना है तो यू कैन वॉच द प्रीवियस वीडियो. आफ्टर दैट वी डिस्कस द मैग्नेटिक फोर्स. दिस फोर्स इज अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट्स विच आर मेड ऑफ द आयरन. ठीक है. सो मैग्नेट अट्रैक्ट्स द आयरन. So this type of force applied by magnet on an iron object is called a magnetic force. उसके बाद हमने बात की थी फ्रिक्शनल फोर्स की. So friction is a force that oppose the motion of an object. ठीक है. Friction is the force that oppose the motion of an object. For example, if you hit the ball after covering some distance, the ball stop or it comes into the rest position. So how this is possible? This is possible due to the frictional force. Okay. So friction is the force that oppose the motion of an object. ठीक है. फ्रिक्शन वो फोर्स है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि मूव कर रहा है तो उसे उसके ऑपोजिट जो फोर्स अप्लाई हो जाती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? फ्रिक्शनल फोर्स. एंड फ्रिक्शन इज मोर ऑन द रफ सरफेस. ठीक है. रफ सरफेस पे फ्रिक्शन क्या होता है बेटा? ज़्यादा होता है.
ठीक है, स्मूथ सरफेस पे फ्रिक्शन क्या होता है, लेस होता है। ओके, सो वी कैन मेक द फ्रिक्शन, हम फ्रिक्शन को लेस भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला था कि इफ यू आर प्लेइंग द गेम ऑफ ए कैरम, सो व्हेन यू पुट द पाउडर ऑन द कैरम बोर्ड, देन जो उसकी गोटियाँ होती हैं बहुत ईजिली स्लिप करने लगती हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, फ्रिक्शन को लेस किया पाउडर डाल के। इन द सेम मैनर डिफरेंट मशीन्स होती हैं, एंड इवन आई गिव यू द एग्जाम्पल ऑफ योर बाईसाइकिल आल्सो। ठीक है, इफ यू अप्लाई ग्रीस इन द चेन, तब आप देखोगे कि आप बहुत ईजिली अपनी बाईसाइकिल चला रहे हो। ठीक है, सो बाय अप्लाइंग ऑयल एंड ग्रीस टू द मशीन आल्सो वी कैन रिड्यूस द फ्रिक्शन। नाउ टुडे वी विल स्टार्ट विद द वर्क। So what is the work? So student, what is work? So when we apply a force on an object and there is the movement of the object, जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करते हैं और उस ऑब्जेक्ट की मूवमेंट होती है, तब हम बोलेंगे यस वर्क इज परफॉर्म्ड। ठीक है, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हो, ठीक है, सो व्हेन वी अप्लाई फोर्स, पहले वर्क की डेफिनेशन लिख लो। व्हेन वी अप्लाई force to move an object, when we apply force to move an object, it is said work is being performed. ओके, सो स्टूडेंट, व्हाट इज वर्क? व्हेन वी अप्लाई फोर्स, ठीक है, व्हेन वी अप्लाई फोर्स टू मूव एन ऑब्जेक्ट, इट इज सैड वर्क इज बीन परफॉर्म। जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करते हैं, या तो हम उस ऑब्जेक्ट को पुल कर रहे हैं या पुश कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है व्हाट इज फोर्स। फोर्स इज वेदर वी पुल ए ऑब्जेक्ट और वेदर वी पुश ए ऑब्जेक्ट, सो दैट इज ए फोर्स। So when we apply force to move an object, it is said work is been performed. Okay, and now, so when we apply force to move an object and the object move, it is said that the work is performed. For example, if we apply a force to a very heavy object, ठीक है, अगर आप किसी बहुत हैवी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई कर रहे हो और उसकी बिल्कुल मूवमेंट नहीं हो रही है, या तो आप उस ऑब्जेक्ट को पुल कर रहे हो या तो पुश कर रहे हो और वो मूव नहीं हो रहा है, तो इस कंडीशन में अगर आपसे कोई पूछेगा कि वर्क परफॉर्म हुआ, तो आंसर होगा नो। ठीक है, वर्क कब परफॉर्म्ड होगा? जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएंगे, वेदर हम उस ऑब्जेक्ट को पुल कर रहे होंगे या तो पुश कर रहे होंगे और उसकी मूवमेंट हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे चेयर है, ठीक है, आपने चेयर को पुल किया और आप उस पर बैठ गए, तो यहाँ पे वर्क परफॉर्म्ड हुआ। ठीक है, आपके बगल में चेयर है, आपके बैठने का मन है, आपने चेयर को खींचा, पुल किया और आप उस पर बैठ गए, तो यहाँ पे वर्क परफॉर्म्ड हो गया। ठीक है, लेकिन मान लो कोई बहुत हैवी ऑब्जेक्ट है जिसको आप पुल कर रहे हो या पुश कर रहे हो, लेकिन उसकी कोई भी मूवमेंट नहीं हो रही है, तो इन दिस केस वी से दैट नो वर्क इज बीन परफॉर्म्ड। इज इट क्लियर? नाउ लेट डू सम fill in the blanks are given. First is force can dash an object. Force can
dash, force can dash an object. तो बेटा आप फोर्स अप्लाई करके किसी भी ऑब्जेक्ट की फोर्स कैन डैश एन ऑब्जेक्ट, तो आप लोग फोर्स अप्लाई करके मैंने बहुत सी कंडीशन बताई थी उसको मूव करा सकते हो, ठीक है। फोर्स कैन मूव एन ऑब्जेक्ट, और भी 5 ऑप्शन है, ठीक है। फोर्स ऑब्जेक्ट को मूव कर सकती है, फोर्स अप्लाई करके हम लोग ऑब्जेक्ट को स्टॉप भी कर सकते हैं, फोर्स अप्लाई करके वी कैन इंक्रीज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट आल्सो, by applying the force we can also change the direction of the object, and by applying force we can also change the shape of the object also. So force can dash an object, force can move an object. Second है things fall on the ground. Things falls on the ground due to dash force. So why the things falls on the ground? अगर आप बॉल को हाई थ्रो करते हो, लेकिन what you will observe, आप ऑब्जर्व करोगे बॉल्स कम डाउन, दिस इज पॉसिबल टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे प्लेनेट पे नहीं होती तो हम लोग क्या है, लाइफ पॉसिबल नहीं होती। पेड़ हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, रॉक है, स्टोन्स है, सारी चीजें हवा में उड़ती रहती हैं, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, सारी चीजों को ग्राउंड की ओर खींचती है, एंड दैट फोर्स इज प्रेजेंट ऑन आवर प्लेनेट। Things falls on the ground due to gravitational force. Third one is the when we move an object dash is said to be done. When we move object dash is said to be done. ठीक है बेटा, अभी जस्ट मैंने बताया था ये आपको, ठीक है। व्हेन यू अप्लाई ए फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, आप किसी ऑब्जेक्ट पे जब कभी फोर्स अप्लाई करते हो और आपके फोर्स अप्लाई करने पे उस ऑब्जेक्ट की मूवमेंट हो जाती है, तो हम उसको बोलते हैं व्हेन वी मूव एन ऑब्जेक्ट, when we move object dash is said to be done what, ठीक है। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई कर लो, जैसे आपका बैठने का मन है, चेयर है, आपने चेयर को पुल किया और बैठ गए, तो यहाँ पे क्या हुआ, व्हेन वी मूव ऑब्जेक्ट, जब हम अपनी फोर्स अप्लाई करके किसी ऑब्जेक्ट की मूवमेंट करा देते हैं, देन वी से वर्क इज सेड टू बी डन। इज इट क्लियर? There is one more fill in the blanks. Fourth is the dash surface produces more friction, ठीक है। फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन इज द फोर्स विच अपोज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स क्या है? फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन इज दैट फोर्स विच अपोज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अगर किसी ऑब्जेक्ट की मूवमेंट होती है तो उसके ऑपोजिट जो फोर्स अप्लाई हो जाती है उसको रोकने के लिए, उसी को फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं, ठीक है। तो फ्रिक्शनल फोर्स बेटा रफ सरफेस पे ज्यादा होती है और स्मूथ सरफेस पे लेस होती है। तो क्वेश्चन है दैट सरफेस प्रोड्यूसेस मोर फ्रिक्शन, तो आप लिखोगे रफ सरफेस,
ठीक है, रफ सरफेस प्रोड्यूसेस मोर फ्रिक्शन। अब नेक्स्ट है एनर्जी। नेक्स्ट इज द एनर्जी, ठीक है, फोर्स हो गया, वर्क हो गया, एनर्जी। सी वी डू लॉट ऑफ एक्टिविटीज इन आवर डे टू डे लाइफ, ठीक है, अपने डे टू डे लाइफ में हम बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज करते हैं। सो हाउ दिस इज पॉसिबल? तो दिस इज पॉसिबल बिकॉज वी आर गेटिंग दिस एनर्जी, काम करने के लिए जो हमें ताकत मिल रही है। दिस इज पॉसिबल बिकॉज वी आर गेटिंग एनर्जी फ्रॉम द फूड विच वी आर ईटिंग, ठीक है। तो हमें काम करने की ताकत किससे मिल रही है? जो हम लोग फूड खाते हैं, ठीक है। सो दैट इज द एनर्जी। ओके, नाउ और एनर्जी की जरूरत किस लिए होती है? हमें वर्क को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। वी डू लॉट ऑफ एक्टिविटीज इन आवर डे टू डे लाइफ एंड वाई वी नीड एनर्जी। हमें एनर्जी की जरूरत क्यों होती है? कोई सी भी वर्क को परफॉर्म करने के लिए हमें क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। अगर हमारे बॉडी में एनर्जी होगी तभी हम उस वर्क को परफॉर्म कर सकेंगे, ठीक है। सो वी नीड एनर्जी। हमें एनर्जी की क्यों जरूरत होती है? वी नीड एनर्जी टू डू वर्क, ओके। वी नीड एनर्जी टू डू वर्क। द food that we eat provide us energy to do work. Is it clear? So what is energy? Energy is the ability. Energy is the ability. Energy is the ability to do work. So नेचर में बहुत सी एनर्जी प्रेजेंट है जिसको हम लोग क्या कर रहे हैं? यूटिलाइज कर रहे हैं, ठीक है। लाइफ हमारे प्लेनेट पे, क्योंकि देखो जब हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं। सो हाउ द लाइफ इज पॉसिबल? लाइफ इज पॉसिबल ड्यू टू द सनलाइट। अगर सनलाइट नहीं होती तो प्लांट्स आर अनएबल टू प्रिपेयर देयर ओन फूड एंड एज वी नो दैट प्लांट्स आर द ओनली प्रोड्यूसर्स, ठीक है। सो नेचुरल थिंग्स, प्रकृति में जो चीज़ें प्रेजेंट हैं उनकी एनर्जी को भी हम लोग क्या करते हैं? यूटिलाइज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एनर्जी इज प्रेजेंट इन, जैसे कि हम लोग सनलाइट है, विंड है, वाटर है, एक्स्ट्रा, ठीक है। सो हम लोग नेचर में बहुत सी चीज़ें प्रेजेंट हैं जिनकी एनर्जी को भी यूटिलाइज कर रहे हैं अपनी डे टू डे लाइफ में, जैसे आपकी सनलाइट है, विंड है, वाटर है, ठीक है। आपने अर्लियर क्लास में पढ़ा होगा रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में। जैसे हम लोग ऑयल है, केरोसिन है, डीजल है, पेट्रोल है, ठीक है। ऑयल, केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, कोल। तो हम लोग इन सारी चीज़ों की, द थिंग्स विच आर प्रेजेंट इन द नेचर, इनकी एनर्जी को भी हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा? यूटिलाइज कर रहे हैं, ठीक है। हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए टू परफॉर्म डिफरेंट वर्क, ठीक है। किसी वर्क को एनर्जी क्या है? एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। किसी भी वर्क को
करने के लिए हमारे अंदर क्या ताकत होनी चाहिए, एनर्जी होनी चाहिए। तो हमें एनर्जी कैसे मिल रही है, बाय ईटिंग द फूड। इन द सेम मैनर नेचर में बहुत सी एनर्जीज है जिसको हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, यूटिलाइज कर रहे हैं। नेचर में बहुत सी एनर्जी जिसको हम लोग यूटिलाइज कर रहे हैं, जैसे सनलाइट है, विंड है, वाटर है, ये सब रिन्यूएबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी है, क्योंकि इनके स्टॉक इतने ज़्यादा हैं कि कभी ख़त्म नहीं होने वाले हैं। ठीक है, और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को भी हम लोग यूज़ कर रहे हैं, जैसे ऑयल है, पेट्रोल है, केरोसिन है, डीजल है, एलपीजी गैस है, ठीक है, फिर उसके बाद कोल है। सो ये सब क्या है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। इन चीज़ों को बनने में हजारों साल लगते हैं, ठीक है, हजारों साल लगते हैं इन चीज़ों को बनने में। तो इनके स्टॉक अगर एक बार फिनिश हो जाएंगे तो ये दोबारा से इतनी जल्दी नहीं बन सकती, इसलिए इनको नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की कैटेगरी में रखा गया है। ठीक, अब डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हम डिस्कस करते हैं। नाउ वी डिस्कस डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है, देखो आप, ये एनर्जी हम लोग कहाँ से मिल रही है, फ्रॉम द वाटर। ठीक है, वो अभी आगे डिस्कस करेंगे जब हम तुम लोग को हाइड्रो एनर्जी के बारे में बताएंगे। ठीक है, सो दिस इज द एनर्जी विच वी आर गेटिंग फ्रॉम द वाटर। ठीक है, ये एनर्जी हमें किससे मिल रही है, वाटर से, क्योंकि वाटर से भी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी क्या करते हैं बेटा, प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, वाटर से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी की हमारी डे टू डे लाइफ में क्या यूसेज है, आप अपने घर में देखते होंगे कि देयर आर मेनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस दैट रन थ्रू द इलेक्ट्रिसिटी। फॉर एग्जांपल आपके घर में फैन होगा, रेफ्रिजरेटर होगा, एसी होगा, कूलर होगा, इवन कुकिंग के लिए भी अब छोटे छोटे आते हैं वो, उससे कुकिंग का वर्क भी आप लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी से कर ले सकते हो। और विंटर के सीज़न में तुम लोग रूम हीटर यूज़ करते होगे। तो ये सारी जितनी भी चीज़ें जो हैं तुम्हारे हाउस में, हाउ दे वर्क ड्यू टू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और ये कैसे प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी is energy, electrical energy is energy that is caused by, that is caused by moving electric, by moving electric charges। ठीक है, इलेक्ट्रिकल चार्जेस पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं, और इलेक्ट्रिकल और ये चार्जेस कहाँ मूव करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी वाली जो वायर्स होती हैं। ठीक है, सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज एनर्जी दैट इज काज्ड बाय मूविंग इलेक्ट्रिक चार्जेस, दैट इलेक्ट्रिक चार्जेस आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड इट मूव्स थ्रू द वायर्स। ठीक है, इट मूव्स थ्रू वायर्स। और आपको जैसे ऑलरेडी मैंने बताया कि हम अपने डे टू डे लाइफ में बहुत से हमारे घर में ऐसी चीज़ें हैं, many things are present in our house which run due to this electricity. For example, fan, refrigerator, cooler, TV, even do charge their mobile also with the electricity. So this is the electrical energy. Okay, now next is the heat energy. So how we are getting the heat energy? Next is the heat energy. So we use heat energy for lot of things. For example, for the cooking purpose also. ठीक है, कुकिंग पर्पस के लिए भी आप
क्योंकि हम लोग कुक को जब फूड को क्या करते हैं, कुक करके ईट करते हैं, वी ईट द फूड वाइल कुकिंग। सो फॉर दिस आल्सो वी रिक्वायर द हीट एनर्जी, इसके लिए भी हमें हीट एनर्जी चाहिए होती है। अगर बहुत ज़्यादा ठंडा होता है तो भी हम लोग अपने घर को वार्म करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, हीट एनर्जी को यूज़ करते हैं। इज इट क्लियर? सो फॉर द कुकिंग पर्पज़ और फॉर वार्म अप द हाउस, और चीज़ों को बर्न करना है, ठीक है, तो इन सब के, खैर बर्न करना तो छोड़ दो, मतलब कुकिंग पर्पस हो गया, अपने हाउस को वार्म करना है। सो फॉर मनी एक्टिविटी वी यूज द हीट एनर्जी, एंड फ्रॉम वेयर वी आर गेटिंग दिस हीट एनर्जी, वी आर गेटिंग दिस हीट एनर्जी, and we are getting this heat energy from coal, कोल है, पेट्रोल है, कोल, पेट्रोल, केरोसिन, sunlight also extra. So these are the resources from where we are getting the heat, ठीक है। तो ये वो रिसोर्सेज हैं जिससे, देखो ओल्ड टाइम में लोग वुड पे भी खाना बनाते थे, फिर कोल पे भी बनाने लगे, ठीक है, कैरोसिन ऑयल्स भी यूज़ करते हैं स्टोव में डालने के लिए, ठीक है। सो एंड इवन ये सब क्या है, ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, कोल, पेट्रोल, कैरोसिन, इनको हजारों साल लग जाते हैं बनने में, ठीक है। लेकिन सनलाइट क्या है, नेचुरल रिसोर्स है, इसकी सोर्स इतने ज़्यादा है कि ये ख़त्म होने वाली नहीं है सनलाइट। तो देखो सनलाइट से भी हीट एनर्जी, सन की लाइट से भी हीट मिलती है ना। अगर आप धूप में बहुत देर खड़े हो जाओ तो आपको लगता है कि एकदम स्किन हमारी जलने लगी है, तो सन की लाइट में ब्राइटनेस के साथ साथ क्या हीट भी होती है, और सनलाइट की वजह से ही पूरी वाटर साइकिल चलती है। आप लोगों ने पढ़ा होगा अर्लियर क्लासेस में, व्हाट इज़ वाटर साइकिल। सन की हीट से, क्योंकि वाटर क्या है, 3 फॉर्म्स में होता है, सॉलिड में भी होता है, लिक्विड में भी होता है, गैस में भी होता है। तो ड्यू टू द सनलाइट द प्रोसेस ऑफ वाटर साइकिल टेक प्लेस, क्योंकि सन के लाइट के, सन की जो हीट है उसी से वाटर क्या होता है, इवापोरेट होता है, उसी से वाटर क्या होता है, इवापोरेशन की प्रोसेस होती है, ठीक है। तो हीट एनर्जी हमने डिस्कस कर ली। हीट एनर्जी वाई इट इज रिक्वायर्ड फॉर कुकिंग द फूड टू मेक आवर हाउस वार्म, एंड बाई एंड व्हाट आर द रिसोर्सेज। उसके बाद हमने ये भी डिस्कस कर लिया कि हीट एनर्जी की रिसोर्सेज कहाँ है, हमें हीट एनर्जी कैसे मिलती है। तो कोल से भी मिलती है, पेट्रोल से भी मिलती है, वुड से भी, बाई बर्निंग द वुड भी लिख सकते हो क्योंकि इसलिए मैंने एक्स्ट्रा लिखा है। और ड्यू टू योर सनलाइट, सनलाइट आपको ब्राइटनेस तो देती है, इसके संग साथ साथ इट आल्सो देयर गिव्स यू हीट। आप लोग देखते होगे कपड़े आप सूखने डाल देते होगे, ठीक है, तो उसके बाद गीले कपड़े आप डालते होगे, कुछ देर बाद आप लोग देखते हो कि कपड़े बिल्कुल ड्राई हो गए। तो हाउ दिस इज पॉसिबल, दिस इज पॉसिबल ड्यू टू द हीट ऑफ द सन। सन की हीट से क्या होता है, जो कपड़ों में जो वाटर होता है वो क्या हो जाता है, इवापोरेट हो जाता है। सो दैट इज द रीजन जब क्लोथ्स बिकम ड्राई। सो दिस इज द हीट एनर्जी। आफ्टर हीट एनर्जी वी विल डिस्कस विंड एनर्जी। देखो विंड की एनर्जी को भी हम लोग यूटिलाइज करके इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं, ठीक है। विंड एनर्जी यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। विंड मिल्स आपने देखी होंगी, बहुत बड़ी बड़ी विंड मिल्स होती हैं, ठीक है। तो विंड के देखो ये जितने नेचुरल थिंग्स हैं इनकी एनर्जी को यूटिलाइज हम लोग कर रहे हैं। विंड एनर्जी से हम लोग क्या बना रहे हैं, वी आर यूजिंग विंड एनर्जी एंड वी आर मेकिंग इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी देखो आप लोग वाटर से भी प्रोड्यूस कर रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी आप लोग विंड से भी हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं। और इसके लिए क्या हमें लगानी पड़ती हैं, विंड मिल्स लगानी पड़ती हैं। इसके लिए हम लोग क्या लगाते हैं, विंड मिल्स लगाते हैं, ओके। हाँ, इसके लिए हम लोग लगाते हैं विंड मिल्स। और अगर ओल्ड टाइम में अगर आप लोग बात करोगे ओल्ड टाइम की, देखो आज प्रेजेंट टाइम में तो बहुत सी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं, बहुत सी ऐसी मशीन्स हैं जो इलेक्ट्रिसिटी पे वर्क करती हैं, ठीक है। ओल्ड टाइम में जब व्हीट को ग्राइंड करना होता था, ठीक है, क्योंकि हम लोग व्हीट जो होती है उसको क्या करते हैं, ग्राइंड करते हैं, जिसको
ग्राइंड करने के बाद फिर उस आटे की हम लोग रोटियां बना के खाते हैं, चपातीस खाते हैं। तो ओल्ड टाइम में विंड मिल्स को भी यूज़ किया जाता था वीट को ग्राइंड करने के लिए, ठीक है। आज भी होता है लेकिन ओल्ड टाइम में बहुत होता था। आज क्या है, प्रेजेंट टाइम में अब देखो 21st सेंचुरीज है, इतनी ज़्यादा मशीन्स हैं कि विद द हेल्प ऑफ दिस मशीन दिस वर्क कैन बी डन वेरी इजीली। लेकिन ओल्ड टाइम में विंड मिल्स, जो हवा वाली चक्कियाँ होती थी, वो चलती थी जब हवा बहुत तेज फ्लो करती थी, वो घूमती थी, उससे भी क्या करते थे, वीट को क्या करते थे, ग्राइंड करने का काम करते थे, ठीक है। और विंड की एनर्जी को भी हम लोग यूटिलाइज कर रहे हैं और उससे ज़्यादा से ज़्यादा क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी। जैसे डिड यू नो में देखो दिया है, नीदरलैंड इज नोन एज द कंट्री ऑफ विंड मिल्स। सबसे ज़्यादा विंड मिल्स, विंड की एनर्जी को जो यूटिलाइज किया जा रहा है वो नीदरलैंड में किया जा रहा है, ठीक है। और अगर हम विंड की बात करें तो ये किस टाइप की सोर्स ऑफ एनर्जी है, तो विंड मिल्स क्या है बेटा, रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, रिन्यूएबल है, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो इसका मीनिंग बेटा क्या हुआ कि इनके स्टॉक कभी भी खत्म होने वाले नहीं, क्योंकि जब हम नेचुरल रिसोर्सेज की बात करेंगे तो वो दो पार्ट्स में डिवाइड है, एक रिन्यूएबल है और एक नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल रिसोर्सेज जिनके स्टॉक कंप्लीटली फिनिश होने वाले नहीं है, और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ये भी आपके नेचर में प्रेजेंट हैं बट इनको बनने में हजारों साल लग जाते हैं। तो अगर इनके स्टॉक एक बार कंप्लीट हो गए तो इनको फिर तुरंत रिप्लेस नहीं किया जा सकता, इसीलिए इनको दो कैटेगरी में रखा गया है, रिन्यूएबल रिसोर्स और नॉन रिन्यूएबल। तो विंड की जब हम लोग बात करें तो ये किस कैटेगरी में आएगा, रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आएगा। ओके, सो नेक्स्ट forms of energy we will discuss in the next video. Thank you student.